It is my privilege to introduce our today's guest speaker, Lieutenant Shubham Harne. I'm proud to say that he is alumni of Somaya Polytechnic and my student from the 2015 diploma batch. After completing his diploma, he joined for BE Civil Engineering from Saraswati College of Engineering, completed BE in 2018, and during the same period, he joined Indian Navy as a executive hydrocadre. The responsibility basically he handles is carrying out the survey of sea bottom and use of this information for making the charts. Uh, Not to elaborate much, I leave this to the speaker so that he can explain his responsibilities and working in a lucrative manner. I welcome Subham for this guest lecture, and I am sure that every one of you will be benefited from this. So, a warm welcome to Subham. Uh, yes, Subham, you can start now. Thank you so much, sir, for the introduction. Yeah, good afternoon, everyone. I'm Lieutenant Shubham Hane. Today, I'm gonna cover about the topics like first of all, you all are civil engineers. You all are going to be civil engineers. So, what are the job opportunities in defense for you guys? And then how to prepare for SSB. And if we'll have a time, I'll share my experience of SSB and how I prepared. So let's start with job opportunities. Being a civil engineer, you guys will have like you can apply for Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, then paramilitary force, which is Coast Guard also. For Indian Navy, there are two types of entry. One is Naval Orientation Course entry, NOC entry, and another is INAC entry, Indian Naval Academy course. INAC entry is like if you have completed your 12th in science, then you can directly opt after 12th. So for that, you have a criteria of 60% overall aggregate, 10 plus 2. Then for Naval Orientation course, you are supposed to have aggregate of 60 percentage in your BE final. Means it comprises of from your 10th standard, 10th, 11th, 12th, and your entire engineering curriculum, entire semester. जितने भी परसेंटेज मिले हैं ये कंपाइल होके तुम्हें 60% अबाव एग्रीगेट होना चाहिए तुम्हारा. Then it comes to Indian Army. In Indian Army, you have a varieties of entries. Like for civil engineer, one of the most important entries is SSC Tech. And for that, I think age limit is 27 years. So you can try it till that. If you have that कि मुझे ज्वाइन करनी है या डिफेंस ज्वाइन करना ही है तो 27 तक तुम्हें वो यू कैन ट्राई. TGC एंट्री भी है, you can try, but these both of these entries are like there will be a lot of people will be applying for this, so you have to be best amongst them. Then for TGC entry also you have age limit of 27 years, and for Indian Naval Academy for Indian Navy, for INAC course age limit is 18 years, and for NOC course age limit is different for different entries. Okay. For example, a logistic entry which is for both men and women, it is 25 years. For my executive entries age limit is 24 years. And one more thing, if you have any doubt, you can just stop me then and there and ask me. Okay. कि बाद में भूल जाओगे तो I don't know, or else you can take my number from sir and it will be an honor to help you guys. Okay. So let's continue. And for Indian Army entry, the TGC entry, SSC Tech, the both are there. And for Air Force, you can go directly, and also through FCAT. For FCAT also, I think age limit is 25 years. Then there are two for Coast Guard entry. You have age limit till 25 years, and if you are SC or ST caste, then you have age relaxation of 5 years. And if you are OBC caste, then you have age relaxation of 3 years. So even Coast Guard entry is very same. It's like just a matter of pay.
with regards to other entries. But Coast Guard is also good. You are a paramilitary force, तो फैसिलिटीज सारी सेम होती है जो which we are all availing. Then it comes to these three entries are there. After that, those who have done BCom or MA, MBA किया है जिन्होंने, and afterwards they want to join defense, so they have FCAT and CDS entry. For both of these entry, age limit is 25 years, and I think portion is also vast, so you have to prepare accordingly. Now I will. Anyone wants to ask anything? Okay, cool. Now I'll tell you about how to. Yes, sir. Shubham, I think you just first go through everything and then cover the Sorry, SSB, sir. what is SSB and its selection criteria, and Sir, then later on we you are will not audible, sir. you. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. And just like you complete everything, then you Yes. go for the SSB. What Yes, is sir. SSB and selection criteria, and then you Yes, give sir. your example, how you got selected, which exams you gave, and how was your Yes, training and sir. everything. And after Yes, that, sir. we will open it for the question and answer. Yes, sir. Sure, sir. I do. Okay. Yeah. Yes, sir. These entries are there. Basically, even one more entry is there for NDA, which is same like Indian Naval Academy course. You have to opt it after 12th. एनडीए में ये बेनिफिट मिलता है कि अगर तुम 12th के बाद इफ यू आर नॉट श्योर इफ यू वांट टू गो फॉर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो यू शुड ज्वाइन एनडीए फर्स्ट. तो एनडीए में आफ्टर 1 ईयर तुम्हें फॉर्म भरना है कि तुम्हें कहाँ जाना है. तो तब तक इन दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग यू विल हैव अ लिटिल एक्सपोजर कि कौन सी सर्विस कैसी है, तुम कहाँ फिट हो सकते हो, इन विच फील्ड यू आर कंपैटिबल, यू कैन डिसाइड आफ्टर दैट. तो दीज एंट्रीज आर देयर. तो फॉर एज तुम तो सारे इंजीनियर बन जाओगे, तो आई थिंक बेस्ट एंट्री फॉर यू विल बी नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एंट्री. तो मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा. फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 60% criteria should be there. Minimum age limit is 22 years. After 22 only you will be able to apply. But तो फॉर्म भरते वक्त अगर हो रहे, मतलब if you are completing 22, then only you will be able to apply for that entry. So and even though you can जो नेवल ओरिएंटेशन कोर्स का फॉर्म है वो 3rd ईयर में भी तुम भर सकते हो, क्योंकि उसकी एसएसबी अगर अगले साल आ रही है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक, तो यू कैन गो फॉर दैट एंट्री. क्योंकि 7th टर्म तक उनको परसेंटेज चाहिए रहते हैं. 8th टर्म का आफ्टर गोइंग टू अकेडमी यू कैन गिव द सर्टिफिकेट ऑफ दैट यू हैव कंप्लीटेड बी इन दिस ड्यूरेशन, और वो ईयर. तो इतना कुछ ये नहीं है. सो इफ यू आर इन लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी and you can start filling for forms. If you want to know more about the entries, you can go Google Chrome, search join Indian Navy.go.in. तो Indian Navy का होम पोर्टल आएगा, उसके ऊपर you just have to go and check am I eligible, and तुम्हें सारी एंट्री के लिए तुम कौन सी एंट्री के लिए एलिजिबल हो वो पूरा दिखाया जाएगा. I will tell you which all entries are there for those who are completing Bachelor of Engineering. For civil के लिए ज्यादा एंट्रीज नहीं है in Indian Navy. You have only SSC Hydro and General Service Executive Engineering. These both entries are there for civil engineers. If you are mechanical, electrical, computer science, तो तुम्हारे लिए there is a plenty of opportunities there. But for civil there is SSC Hydro and General Service Executive Engineering. For जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में ये रहता है कि देर आर वेरियस ब्रांचेस इन नेवी. लाइक जैसे जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी गनरी डिपार्टमेंट आता है,
एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिपार्टमेंट आता है, सबमरीन डिपार्टमेंट आता है, देन सिग्नल कम्युनिकेशन आता है, देन हाइड्रो भी आता है, लॉजिस्टिक भी आता है, आईटी भी आता है। तो अकॉर्डिंगली तुम्हें बाद में इसका एक आता है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक ट्रेनिंग 3 years, आई थिंक आफ्टर 3 to 4 years तुम्हें वो ऑप्ट करना है कि इन विच ब्रांच यू हैव टू गो एंड यू वांट टू गो according to your percentage, whatever you have scored, whatever you have progressed, according to that you will be able to fill the form. So this is a brief introduction about which all entries you can apply. If you have any query, you can just go to joinindiannavy.gov.in, और कोस्ट गार्ड के बारे में देखना है तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, you just have to search, तो तुम्हें होम पोर्टल आ जाएगा, you can just check on it, और अगर मेरी हेल्प चाहिए you can call me anytime. Then now I'll tell you about Service Selection Board SSB, जो एग्जाम which is very helpful you can say कि ये एग्जाम है जो डिफेंस के लिए if you want to try, तो कौन सी एग्जाम क्रैक कर सकते हो और क्या क्या होता है. देयर आर 2 एंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक तो डायरेक्टली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एग्जाम थ्रू आती है, या फिर एक यूए स्कीम करके आई है आजकल, यूनिवर्सिटी एंट्रांस स्कीम. उसमें यू हैव टू, जब तुम लास्ट ईयर में आते हो, यू हैव टू फिल फॉर्म फॉर यूएस एंट्री स्कीम. थ्रू दिस एंट्री यहाँ पे एक कॉलेज लेवल इंटरव्यू लिया जाता है, वो भी ऑफिसर्स ही लेते हैं फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच, इंडियन नेवी एजुकेशन ब्रांच के ऑफिसर्स आते हैं और वो लेते हैं इसकी एंट्री इंटरव्यू. एक ऑफिसर्स लाइक लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट कमांडर, दे विल बी देयर and you'll just have a quick interview with them, personal interview, and 2 group discussions will be there amongst you people only. So group discussion में 2 topic दिए जाएंगे and they'll just check you, the way you talk, the way you have confidence. They'll just take it and you will be shortlisted for SSB after that. Second entry is direct entry, which is service selection board like direct SSB entry. This is US scheme and this is direct SSB. Direct SSB में भी if you are good, if you had good marks after 10th, like 11th, 12th, and in your or else diploma or engineering throughout your career, if you are having good marks now, then you will be shortlisted for that. It doesn't matter if you have 60, you should have about 60%, but it's not necessary if you are having 75% aggregate and you will get selected for that SSB, direct SSB. Okay, it's all about like जो भी those students who are applying, उनमें जो टॉप वाले होते हैं स्टूडेंट्स, they will give you the chance to appear for direct SSB. तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें अगर गुड परसेंटेज है 10th में, 12th में, डिप्लोमा या एंटायर डिग्री के करिकुलम में पूरे, तो ये बेनिफिट हो सकता है. बिकॉज क्योंकि यूनिवर्सिटी एंट्रांस स्कीम में कैसे होता है, देयर विल बी लाइक 1000 स्टूडेंट्स वर देयर व्हेन आई हैड माय यूनिवर्सिटी एंट्रांस स्कीम. वी वर अबाउट 1000 स्टूडेंट वर देयर. तो उन 1000 में से ही लाइक only 100 got the chance. I think 100 people they were called for SSB. So you can see, मतलब अगर तुम्हें परसेंटेज अच्छे है तो डायरेक्ट SSB एक बहुत बेनिफिट हो सकता है उससे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एंट्रांस स्कीम में मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. Then after that now SSB, Service Selection Board, it's all about like total you will having 5 days, 5 दिन का एग्जाम होता है. 5 दिन के एग्जाम में पहले दिन होता है तुम्हारा पिक्चर परसेप्शन एंड स्क्रीनिंग टेस्ट. सेकेंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट होता है. उसमें लाइक 60 क्वेश्चंस होते हैं. नो, दे आर नॉर्मल क्वेश्चंस. you'll be able to answer it. You can just Google it about logical reasoning question and picture perception and description test. So main important test to getting screen in is picture perception and description test, because it shows your perspective about the picture you see around you and what story you are making out of it. So this is a very important test, क्योंकि अगर तुम्हें आगे की टेस्ट अपीयर करनी है तो तुम्हें CPDT anyhow you have to clear this screening test
तुम जैसे ही एसएसबी के लिए जाते हो तो अमॉन्ग द 5 days पहले दिन तुम्हारा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो जाएगा और स्क्रीन ये लॉजिकल रीजनिंग वाला टेस्ट हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि तुम्हें पहले एक इमेज दिखाई जाएगी, तो उस इमेज और 5 मिनट दिए जाएंगे। उस इमेज से तुम्हें सोचना है और एक स्टोरी बनानी है, शॉर्ट स्टोरी अमाउंट आई थिंक 60 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, 60 to 100 वर्ड्स, ऐसी एक स्टोरी बनानी है। और तुम्हें तो ऐसे ग्रुप वाइज बांटा जाएगा, 10 पीपल, और जो देर विल बी 2 to 3 इंस्ट्रक्टर्स विल बी देयर, दे विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग यू। तो पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट के लिए जो 3 इंस्ट्रक्टर होते हैं, दे आर बेसिकली आई थिंक एक तो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, नहीं तो सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं। तो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। तो जो भी तुमने स्टोरी बनाई है अपनी, इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट होती है, तो अगर तुम वो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो स्टोरी, देन ऑल्सो इट्स ओके, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि इसके बाद तुम वो स्टोरी कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो और अपना पॉइंट कैसे रख रहे हो उनके सामने। those 10 people will be there, you just have to show them what qualities you have to become an officer. Okay, ये सबसे important है, क्योंकि that time they will see कि अच्छा he is able to commit, वो एक stage fear होता है कि he is not able to talk, या you know lots of points are there। तो पहला तो यही है कि जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो you just have to take initiative in that। Yes, good afternoon everyone, I'm so and so, and from this story I can relate that कि this things are there। But एक important चीज है यहाँ पे कि वो तुम्हें भले नेगेटिव पिक्चर शो करे, बट यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव स्टोरी फ्रॉम दैट। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि कुछ चाहे इमेज कुछ भी हो जाए, यू जस्ट हैव टू शो द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ योर सेल्फ। तभी, क्योंकि एक ऑफिसर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि नो मैटर व्हाट सिचुएशन विल बी, यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव इन दैट। तो ये स्टोरी के व्हाइल डिस्क्राइबिंग योर स्टोरी यू हैव टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, है कि अपना अपना पॉइंट बताओ कि सर मेरा पॉइंट ये है और आई वुड लाइक टू टेक अ वोट ऑन दिस। इफ यू अगर किसी की सेम स्टोरी तुमसे मिलती है तो वी विल एग्री विथ यू, some might disagree with you, it doesn't matter, but what matters, the way you talk, the way you show your potential, and the way you show your communication skills, the way you show your thoughts। इस डिस्कशन में एक और चीज आई पॉइंट आउट कि एक ऑफिसर की कुछ 17 लीडरशिप क्वालिटीज आर देयर जो एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट की जाती है, और ये पूरे एसएसबी के 5 दिन में they will just see whether you have that maximum qualities or not। so it's all about whether you are having those qualities or not। तो ऐसे इस पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में we just have to see कि if everyone whether everyone is talking or not। अगर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि किसी को एक फियर ऑफ स्टेज ऑफ फियर रहता है कि मैं नहीं बात कर सकता, मतलब कैसे कि समटाइम्स फिश मार्केट हो जाता है तो वो पूरा बैच वॉश आउट कर देते हैं वो। So you just have to take care of that कि अगर फिश मार्केट हो रहा है तो you have to take initiative and tell them, hey, listen everyone, gentlemen, I think we are calling on this topic, so let's listen everyone peacefully। so you have to show that you have that leadership quality, then only you will be able to pass that exam। okay, तो अगर कोई बात नहीं कर पा रहा है तो you just have to just take initiative and say I would like to take Mr. So and so's thoughts about this, what he want to say, let's listen him। so it shows your leadership qualities कि अच्छा it's like कि अगर तुम अकेले जा रहे हो तो you have that ability कि नहीं मैं अपने कलीग को भी साथ लेकर चलूंगा, ऐसे it shows that leadership quality कि अच्छा you have that, so it will be plus point for you। okay, then after this ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद at the end if everyone जब सबका खत्म हो जाता है they will announce the result, और जो means around 25 to 30 people they take for one batch of SSC। okay, these 25 to 30 people then they will go for second, और जो बाकी सिलेक्ट नहीं हुए फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही स्क्रीन आउट हो गए, they will directly send you to home। okay,
Then now it comes to second day. Second day of SSB, it's like you will be having three tests. एक psychological test होता है, एक again you will be having picture perception test, okay, and third is situation reaction test. So psychological test में it's like psychologist will be there and he will be asking you questions. So in these questions you won't be able to bluff, okay, because the psychologist logist is sitting in front of you ना, उसका experience तुम्हारे एज से भी ज्यादा है. You won't be it's all about कि SSG is all about कि how you present yourself and you are not supposed to bluff in this exam because उनको समझ जाता है तुम कितना भी ट्राई करो, कितना भी स्मार्ट एक्ट मारो, उनको समझ जाएगा कि और कि तुमने कोचिंग ली है बाहर से कहीं से, या और यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, ओके. सो डोंट ब्लफ इन दिस SSB. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में इट्स ऑल अबाउट लाइक तुम्हारी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है, तुम्हें कुछ नेगेटिव पिक्चर्स शो की जाएंगी, सेम लाइक तुम्हारा परसेप्शन देखा जाएगा, तुम क्या बात करते हो उस चीज के बारे में, कैसे. दैट वन साइकोलॉजिस्ट विल बी देयर ड्यूरिंग दिस एंटायर टेस्ट, ही विल बी ऑब्जर्विंग यू. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से देख रहा है वो, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, बट ऑल द टाइम ही विल बी ऑब्जर्विंग यू ओनली. Then after that it comes to picture perception test. Again you will be showing something around 60 slides show की जाएगी तुम्हें. 60 slides में I think they will give you 2 to 4 minutes for every slide. वो slide तो flash होगी only for 30 seconds, I think 30 seconds to 1 minute, and in that then again 3 to 4 minutes you have to complete your story. ऐसी 60 stories होती है. Then so same point, key point for this is no matter what will be the picture, just try to give that positive attitude to your story. That's what matters. Because इतने कम टाइम में तुम क्या सोच पाते हो, तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, क्योंकि 60 स्लाइड्स में तुम कितना भी ब्लफ कर लो कि पॉजिटिव दिखाने का, बट एट द एंड तुम्हारा जो माइंडसेट है, द वे यू थिंक ना, वो आ ही जाता है. दैट्स वाई उन्होंने ये 60 का क्राइटेरिया रखा है. आफ्टर दैट इट कम्स टू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. सेम 60 सिचुएशंस विल बी देयर. सिचुएशंस लिखी हुई रहती है एक पेपर पे. 60 सिचुएशंस के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाता है. तो सेम सिचुएशन दिया रही है कि ओके लाइक कि एक बंदा लाइक सम ग्रुप ऑफ पीपल इज देयर, लाइक वो नहा रहे थे वहां पे है और उनमें से एक ऐसे डूबने लगा, ही वॉज नॉट अ स्विमर. तो अगर तुम वहां पे होते प्रेजेंट तो तुम क्या करते. ऐसी सिचुएशंस रहती है. लाइक फिर दूसरी सिचुएशन ऐसी रही कि एक बंदे ने चोरी की है मेडिकल से, कि उसकी माँ अगर तुम वो मेडिकल शॉप पर, सर कैन यू होल्ड फॉर अ मिनट सर, I'll just back sir, I'm sorry, I'll just back. Okay dear. Everyone, whatever the queries or doubts you are getting in your mind, or if you want to ask any question, just write it down somewhere, and after the lecture you can ask one by one. Yeah, sorry. Let's continue. Okay. Then situation reaction test. तो ऐसी सारी सिचुएशंस दी जाएगी. उन सब सिचुएशन में भी तुम्हें यू जस्ट डोंट ब्लफ इन दिस, ओके, इन दिस एंटायर एग्जाम ना, डोंट ब्लफ. आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू, ओके. तो जस्ट बी यू. जो भी तुम्हें समझ आता है, जो भी लगता है अच्छा मैं अगर ये होता तो मैं ये करता, जस्ट राइट इट डाउन. बिकॉज 40 मिनट में 60 सिचुएशंस कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल, ओके. ये होने के बाद देन इट कम्स टू थर्ड डे. थर्ड डे इज ऑल अबाउट योर फिटनेस, फिजिकल प्रोफिशिएंसी, हाउ फिट यू आर, विल जस्ट चेक इट. और तुम दिमाग से कितना सोचते हो. यू विल हैव वन सिचुएशन अवेयरनेस टेस्ट, ओके. उसमें क्या दिया जाएगा कि एक चार्ट होता है वहां पे, उसमें चार्ट पे तुम्हें सिचुएशन दी जाती है कि यहाँ पे एक गांव है, वहां से एक बोट, स्पीड बोट अवेलेबल है वहां पे, यहाँ से रेल ट्रैक जा रहा है. तो
वो चोरों ने डिसाइड किया है कि वो गांव की बैंक को लूटने वाले हैं, और उनमें से आधे चोर ये करने वाले कि रेल की पटरी उड़ा देने वाले हैं। तो अभी ये सिचुएशन में अगर तुम होते तो तुम क्या करते, ऐसे बता। तो जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, व्हाट मैटर्स, पहली बात तो पीपल मैटर, ओके, उनकी लाइफ मैटर करती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। और वो तुम्हें बताएंगे कि यू आर 4 पीपल और 5 पीपल, तो तुम ये अपने ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा। तो तुम्हें और इसके लिए 5 मिनट दिए जाते हैं अपनी डिस्कस करने के लिए, एंड यू हैव टू कम अप एज ए स्टोरी एज ए ग्रुप, ओके, एज ए ग्रुप तुम्हें अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी है। तो इससे देखना है, तो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट। और ये यू जस्ट गूगल इट और यूट्यूब पे भी तुम्हें मिल जाएगा ये टेस्ट के बारे में। बट यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ को देनी है, उसके बाद वेल्थ आती है, पैसा आता है या दूसरा कुछ आता है, ओके, ये होते हैं। देन उसके बाद आता है ग्रुप टास्क तुम्हारे। ग्रुप टास्क में मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट यू गो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च अबाउट ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में बहुत सारे मतलब लाइक कि तुम्हें एक भट्टा दिया जाएगा, एक लकड़ी दी जाएगी, एक रोप दी जाएगी, उसके विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू क्रॉस द हर्डल विथ योर ग्रुप, एज अ ग्रुप तुम्हें वो क्रॉस करना है, ओके। देन थर्ड टेस्ट होता है उस दिन का कमांड टास्क करके। इन दैट कमांड टास्क इट्स लाइक यू विल बी द कमांडर एंड यू हैव टू अपॉइंट 2 पीपल अमंग्स योर ग्रुप हु विल हेल्प यू। तुम्हें अपने आइडिया बताने की तुम वो हर्डल कैसे क्लियर करोगे, एंड दे जस्ट वर्क फॉर यू, लाइक वो तुम जैसे बताओगे वो वैसे करेंगे। ये होता है कमांड टास्क। एक होता है कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट। इसमें तुम्हें 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो भी तुम यूट्यूब पे देख लेना कि वो ऑब्स्टेकल इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्लियरेंस टेस्ट कैसे होता है। उससे टार्जन जंप वगैरह होता है। देन एक टायर के ऊपर से देन you have to walk on a plank. There are a lot of 10 like it's or 10 है hurdles, वो तुम्हें क्लियर करने होता है एज ए इंडिविजुअल, नॉट एज ए ग्रुप, एज ए इंडिविजुअल। यू कैन रिपीट आफ्टर कंप्लीटिंग दोस 10 ऑब्स्टेकल्स, यू कैन रिपीट इट। तो इसमें तुम्हें प्लस पॉइंट मिलता है कि अच्छा शोज योर लाइक स्किल्स लाइक रनिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसे शो करता है। एक और होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल टेस्ट होता है एक, जिसमें हर्डल्स होते हैं थोड़े डिफरेंट लेवल के होते हैं, वो एज अ ग्रुप तुम्हें कंप्लीट करने होते हैं, नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप यू हैव टू कंप्लीट दिस। ये हो गया थर्ड डे। नाउ इट कम्स टू फोर्थ डे। फोर्थ डे होता है तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू, विच विल बी टेकन बाय वेदर द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। देयर विल बी 2 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड 1 विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। तो इन तीनों में से कोई भी इंटरव्यू ले सकता है तुम्हारा, और there is no any limitation for an interview, okay? Interview में they will ask you anything, मतलब anything, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, there is no any limit for that. But यहाँ पे एक technical knowledge, if you will talk in respect of technical knowledge ना, the civil engineers will have one benefit in this, बिकॉज जो तुम्हारे बोर्ड प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट रहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द इन डिफेंस यू विल सी ना कि दे हायर मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब मैकेनिक जो जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है वही होते हैं मैक्सिमम। सिविल वाले बहुत कम मिलेंगे तुम्हें डिफेंस में। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ऐसा होता है कि दे वोंट बी एबल टू आस्क यू टेक्निकल मच, तो they will, I think they will just we have one common subject, structure of mechanics in civil and mechanics, so they will ask you on that only, okay. Then again they will ask you about your family, your personal life. They will dig in your personal life, okay, because they want to know what kind of person you are. Then or in depends, okay, interview के लिए कोई limit नहीं है, वो maybe they will start taking your picture perception there also only. If he is having a doubt about you, means it's like 50-50% की डाइसी सिचुएशन रहेगी अगर इंटरव्यूअर के लिए इसको लेना है या नहीं लेना है, तो दे विल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू लाइक 1 घंटे के लिए चलता है। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं, लाइक 10 क्वेश्चंस, इंटरव्यूअर विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस
You have to answer those 10 questions in that sequence only. जिस सीक्वेंस में तुम्हें क्वेश्चन पूछे गए उसी सीक्वेंस में तुम्हें आंसर करने हैं. और एंड मैं यू विल बी आस्क एनीथिंग फॉर मी, तो यू जस्ट हैव टू से कि अगर तुम्हें कुछ बताना है कि या एसएसबी के लिए कुछ दिस एसएसबी सेंटर के लिए हम ये करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स. यू जस्ट हैव टू टेल देम व्हाटएवर योर थॉट्स विल अबाउटिंग. ही विल आस्क यू हाउ वाज स्टे और एनीथिंग फॉर दिस, मतलब एसएसबी के इफ यू हैव टू इम्प्रोवाइज इन दिस एग्जाम क्या कर सकते हैं, ये वही लास्ट. Personal interview is a key factor in this because again vice president, president जो भी है they are retired officers only, so they know what kind of person you are, क्या होता है. If you will bluff in this उन्हें पता चल जाता है. They will just spot you, okay, and they will वो तुम्हें मुंह पे बोल देंगे I know you are lying, you are bluffing, ऐसा वो मुंह पे बोल देते हैं. So you just have to take care of it. And after interview like they will announce this result by afternoon or evening about conference. तो अगर तुम recommend हो जाते हो तो it's very good. After that you will go for medicals. total 5 दिन का होता है. तो इसमें जो मेडिकल इंटरव्यू तुम्हारा डिपेंड करता है, ओके, whether it will be on 4th day or 5th day. It's entirely depend on them कि उन्हें कब लेना है. बेसिकली 4th day से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है बिकॉज 24 to 30 people will be there. तो वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम ओनली. तो कभी कभी 4 दिन लगते, कभी 5 दिन लग जाते हैं. कभी ग्रुप ऑब्स्टेकल टेस्ट में अगर कुछ हो जाए, टाइम लग जाता है, तो वो 2nd और 3rd डे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते ऑब्स्टेकल टेस्ट और तुम्हारा ये. तो 4 दिन इसमें लग जाते हैं. 5th डे पे कॉन्फ्रेंस होता है तुम्हारा. अगर तुम रेकमेंड हो जाते हो तो 6th डे से तुम्हारा मेडिकल स्टार्ट हो जाता है. अगर नहीं हो जाते देन अगेन टाटा बाय बाय और 5th डे पे तुम घर चले जाओगे. दिस इज अबाउट एसएसबी. नाउ आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट एसएसबी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम नॉट लाइक, मैं कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं था. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. इट्स जस्ट लाइक दैट कि आई यूज्ड टू स्टडी. तो मेरे 10th में आई हैड 90%, मेरे डिप्लोमा में 85% थे एंड मेरा डिग्री का पॉइंटर 9.54 था एवरेज मिला के पूरा टोटल. तो मैंने यूएस एंट्री भी दी थी. मैंने उसका भी इंटरव्यू क्रैक कर लिया था. बट यूएस एंट्री से पहले मुझे डायरेक्ट एंट्री का ही एसएसबी के लिए कॉल आ गया था. मैंने अराउंड 2017 जुलाई 2017 में मैंने फॉर्म भरा था. देन दोनों फॉर्म भरे थे. यूएस एंट्री के लिए भी भरा था, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए भी भरा था. सेम क्राइटेरिया 60% तो चाहिए ही है. और देन मेरा यूएस एंट्री के लिए मेरा इंटरव्यू 28 सितंबर 2017 में था. वो था डीवाई पाटिल कॉलेज में. वी वर अराउंड 1000 to 1200 स्टूडेंट्स वर देयर. और उनमें से अराउंड सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आई थिंक 2 people वर कॉल्ड फॉर एसएसबी. आई वॉज वन ऑफ देम. देन आफ्टर दैट फॉर डायरेक्ट एंट्री एज आई टोल्ड यू माई परसेंटेज, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंटली मुझे डायरेक्ट एंट्री के लिए एसएसबी कॉल आ ही जाएगा. So in December, November end 2017, November end, I got a call for SSB, which was scheduled on 17th of Feb 2018. तब तो मेरा लास्ट ईयर चल रहा था. I completed my 7th sem. और then I started preparing कि I had ये इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे नवंबर एंड में एसएसबी के पता चला था कि मुझे एसएसबी के लिए बुलाया फेब में. तो आई जस्ट हैड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी. तो देन जैसे ही एग्जाम खत्म हो गए, फाइनल 7th टर्म के एग्जाम, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एन एसएसबी फॉर एसएसबी. आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर ओनली 2 hours a day, ओके, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन कल्याण. तो मुझे कल्याण से खारघर जाना मतलब इट यूज्ड टू टेक मी अराउंड 2 hours. और इसके बाद कॉलेज फिर रिटर्न आते वक्त तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है लाइक एसएसबी गैग हो गया, फिर करंट अफेयर्स हो गए जनरल नॉलेज के लिए.
मैं वो यूट्यूब से सारे वीडियोस डाउनलोड कर लेता था, और ये जो मेरा ट्रेन का पीरियड था यहाँ से जाने तक खारघर तक, मैं उस सब टाइम पे ये सारे वीडियोस देखता था, और एक अपनी छोटी सी नोटबुक बनाई थी, उसमें मैं कीवर्ड्स नोट कर लेता था, जैसे डेट हो गई, कुछ हो गई, ओके। तो आई यूज टू डू दिस। और मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी थे जो दे वर प्रिपेयरिंग विथ मी, तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल। अगर तुम एज अ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि सब पढ़ लूंगा सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ओके। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एज अ ग्रुप, तो इट्स चेरी ऑन केक, ओके। तो आई यूज टू प्रिपेयर 2 आवर्स अ डे, क्योंकि मुझे तब तो वो 30 डेज का जो 3 हफ्ते की छुट्टी थी दिसंबर की, उसमें मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि क्या ऐसे एसएसबी की प्रोसीजर होती है, बिकॉज देयर वाज नो वन कि वो मुझे गाइड कर सके कि एसएसबी ऐसा होता है वैसा होता है। कोई नहीं था मेरे, ना ही मेरा फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस वाला है, ना ही मेरे अराउंड, देयर वाज नो वन। तो मैंने बस गूगल देव को देखा और सब सर्च कर लिया क्या होता है एसएससी, लाइक हाउ यू प्रिपेयर, हाउ व्हाट। मैंने इवन यू कैन गो फॉर कोचिंग ऑल्सो, बट आई सजेस्ट यू नॉट टू गो, ओके। कोचिंग में कैसा होता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, प्रॉपर टाइप पढ़ाया जाता है कि अच्छा एसएससी ऐसा होता है, ये स्टोरीज होती है, जनरली चीजें रिपीट ही होती है, ऐसा कुछ है ये है नहीं कि नया कुछ आ रहा होगा, जो थोड़ी बहुत पिक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ऐसा होता है। तो अगर तुम क्लास ट्यूशन लेके जाते हो ना, तो वो भी उनको समझ जाता है, दे विल जस्ट कैच यू, बिकॉज उनको पता है, क्योंकि उन्होंने भी कभी ट्यूशन लिए थे, ओके। आई विल टेल यू फ्रैंकली, तो उनको पता चल जाता है कि कौन खुद से प्रिपेयर करके आया और किसने ट्यूशन लिया है इसके लिए। और ट्यूशन भी बहुत कॉस्टली होता है, इट्स लाइक वो कुछ तो अराउंड 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, एंड दे विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20 thousand, ओके। तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर सेल्फ ओनली, ये इतना कुछ हाई फाई एग्जाम नहीं है, ओके। इफ यू बी जेन्युइन एंड बी योर सेल्फ ना, यू विल बी एबल टू क्रैक इट इजीली। तो फॉर रिकॉर्ड इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर कर लिया है। दो आई नो इट्स लाइक बहुत इट्स टफ, ओके। ये एग्जाम क्रैक करना है टफ, बिकॉज मेरे साथ कोई कोई थे जो कैंडिडेट थे, उन्होंने लाइक किसी किसी का 10th अटेम्प्ट था, किसी का 7th था, 6th था, तो उनको पता था कि ये एग्जाम कैसे होता है वगैरह। मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, आई हैड जस्ट रफ आइडिया अबाउट इट। देन लेट्स गेट बैक टू, अगर तुम्हें कोचिंग लगानी है तो यू कैन गो, बट आई जस्ट सजेस्ट यू प्लीज डोंट गो फॉर कोचिंग, ओके। इसका प्रिपरेशन तुम खुद कर सकते हो। सो आई प्रिपेयर्ड इन दिसंबर, देन जनवरी से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था फिर से, तो मैं कुछ इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बट या मेरा आई हैड माई ग्रुप, तो हम डिस्कस करते थे, क्योंकि इतना एग्जाम लास्ट लास्ट ईयर था, लास्ट टर्म था, तो इट वॉज इम्पोर्टेंट था कि मैं स्कोर अच्छा करूँ। तो आई विल प्रिपेयरिंग फॉर बोथ माई एग्जाम ऑल्सो, फॉर एसएसबी ऑल्सो। देन यू कैन गो, अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन गो जस्ट गो ऑन अमेजोन, और एसएसबी क्रैक करके एक बुक आती है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400-500, बट वो बुक से पढ़ना है तो क्योंकि मैंने उसी को रेफर किया था, और ट्रस्ट में बहुत हेल्प हुई थी मुझे, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि कैसे करना है क्या करना है, तो वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए। मैंने वो बुक से पढ़ा था भी कैसे 5 दिन में क्या क्या होता है, कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर यूट्यूब से मैंने वीडियोस भी देखे थे, ओके, कि ग्रुप ऑब्स्टेकल कैसे क्लियर करना है वगैरह, उसमें सब तुम्हें अपना बताना है कि तुम क्या सोच सकते हो वगैरह, ओके। देन फर्स्ट डे ये सब हो गया, मैंने प्रिपेयर कर लिया ऐसे। टेक्निकल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो नाउ आई टेल यू कि ये तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है। मैं 1-2 घंटा दिन के एसएसबी के लिए प्रिपेयर करता था, उसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, फिर इंडियन नेवी की कौन सी नई शिप्स आ रही है, मेरी हाइड्रो कैडर की कौन सी शिप्स है, उन्होंने क्या क्या किया है अब तक, ये सब पढ़ा था मैंने। इंडियन नेवी के सबमरीन के बारे में पढ़ा था कि कौन सी शिप्स है, कौन सी सबमरीन है, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। बस नाम भी याद हो गया तो भी चलता है, एट दैट लेवल, ओके, इट विल वर्क। देन आफ्टर दैट
जनरल रीजनिंग क्वेश्चंस एक्चुअली वो इजी होते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ इतना ये नहीं लगता। मेन आता है तुम्हारा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो व्हाट आई डिड कि फॉर 30 days आई यूज टू राइट 2 story इन अ डे, और हम अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते थे कि मैंने आज ये स्टोरी बनाई है ऑन दिस पिक्चर, जस्ट गिव मी सम सजेशंस ऑन दिस। तो वैसा तुम कर सकते हो, और तुम खुद से स्टोरी बना के मतलब एक पिक्चर पे, और तुम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू गो ऑन ssdcrack.com तुम्हें सब मिल जाएगा वो स्टडी मटेरियल, ओके, कि ऐसे स्टोरी। तो इससे क्या होता है कि यू नो अगर तुमने वो पिक्चर से स्टोरी बनाई हुई है अपने, तो तुम सेम अगर जाओगे वहां पे लाइक एग्जाम देने के लिए, एसएसबी एग्जाम देने के लिए, यू विल सी दैट कि 3-4 इमेज तो मतलब हाँ मोर देन 4-5 यार, तो सेम इमेज तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ तुम्हें बेनिफिट ये होता है कि जल्दी इजीली वो स्टोरी लिखने में तुम्हें जल्दी फायदा हो जाएगा, मतलब यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट। देन आफ्टर दैट ये सब होने के बाद ग्रुप लाइक नॉर्मल रनिंग कर रहा था मैं थोड़ी सी, क्योंकि जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स है और ग्रुप ऑब्स्टेकल्स है उनमें थोड़ी फिजिकल फिटनेस मैटर करती है, ओके। तो मैं पुशअप, क्रंचेस, सिटअप्स और रनिंग नॉर्मली कर रहा था, ज़्यादा नहीं, बिकॉज कॉलेज के टाइम पे टाइम नहीं मिलता था इन सब चीज़ों के लिए, तो नॉर्मली फिट था आई विल। उसके बाद फेब 17 में आई वेंट फॉर माई SSB, 12 SSB Bangalore, one of the best SSB centers in like I can say. तो फर्स्ट डे पे लाइक 350 कैंडिडेट्स वर देयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। 350 में से आई थिंक 4-5 का डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, तो 345 रह गए थे। तो पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट में 345 में से बस 24 हम स्क्रीनिंग हुए थे, ओके। तो जस्ट सी की अमाउंट ऑफ कट ऑफ मीन्स 345 में से उन्होंने बस 24 बंदों को लिया था, ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट में, बाकी सबको घर भेज दिया था। तो ऐसा होता है कि यू नो यू गेट दिस वन टाइम चांस, यू जस्ट हैव टू पुट इन 100%। आई विल टेल यू अबाउट माय जनरल रीजनिंग। तो मैंने बताया कि नॉर्मल क्वेश्चन थे। आई विल टेल यू अबाउट कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ओके। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में मुझे एक ऐसी इमेज शो की गई थी कि लाइक कि बीएसएफ के सोल्जर्स थे, और देयर लाइक 2-3 माउंटेन्स वर देयर, और एक माउंटेन के पीछे से ऐसे धुआं आ रहा था, ऐसी इमेज थी। तो टू बी ऑनेस्ट कि मैंने ये इमेज पहले भी देखी थी, और मैंने इससे स्टोरी भी बनाई थी पहले से। तो मुझे यहाँ पे बहुत बेनिफिट हुआ था इसका, क्योंकि ये मेन स्क्रीनिंग पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट बहुत मेन होता है स्क्रीनिंग होने के लिए। तो मैंने स्टोरी ऐसे बनाई थी कि जो बीएसएफ के जवान थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर के अलाउ साइड, तो उन्होंने देखा कि एक साइड से धुआं आ रहा है। तो पहली बात तो उनको लगा कि आग लगी है। Then that time they rushed to the scene of fire, but after rushing to scene of reaching there, they found that some farmers were there. What they were doing कि जो हम you must have seen कि गांव में जो खेतों में जलाते हैं ना, तो इट्स लाइक कि उसका एज मैन्योर, एज तुम खत करके मैन्योर यूज कर सकते हो उसको। तो मैंने स्टोरी में अपना ये लिखा था कि वो फार्मर्स पूरा कचरा वगैरह ऐसे जमा करके खेत में जला रहे थे, कि जला के मतलब इससे तो खत बनाएंगे, मैन्योर बनाएंगे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप। तो मैंने ये लिखा कि तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने उन फार्मर्स से इंटरेक्ट किया कि दिस इज नॉट द रॉन्ग, दिस इज नॉट द राइट वे, ओके। तो उन्होंने उनको मतलब लाइक एज अ सिविल इंजीनियर मुझे थोड़ा गोबर गैस के बारे में वगैरह बता था कि जैसे, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा मतलब यू नो आई फोकस मोर ऑन दैट, कि फिर सोल्जर्स ने उनको बताया कि अरे आप ऐसे जलाने से बेटर, मतलब अगर आप जलाओगे तो देयर आर चांसेस कि बाजू वाले खेतों में भी आग लग सकती है या पेड़ पौधों में भी आग लग सकती है, इसके कारण बहुत लॉस हो सकता है प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी, बिकॉज ये एनिमल्स वगैरह रहते हैं, सो यू नो दे माइट गेट हर्ट।
तो ये पॉइंट एक मैंने लिखा था उसमें। और फिर मैंने एक और पॉइंट ये लिखा कि फिर उन सोल्जर्स ने कैसे उन फार्मर्स को बताया कि यू कैन जस्ट, एक होता है कि लाइक तुम ऐसे वो पूरा जो कचरा है वो तुम वैसे ही रख दो खेत में, और उसके ऊपर जस्ट कीप ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर कॉन्स्टेंटली ना, तो लाइक उससे मैन्योर रेडी हो जाता है कि तो उसको तुम यूज कर सकते हो। और तुम बायोगैस का मैंने बताया था उनको, तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, ओके, जो मतलब लाइक माई स्टोरी वॉज डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, ओके। मेरी मेरी स्टोरी जैसे किसी ने भी स्टोरी नहीं लिखी थी। मेरे पॉइंट्स में मैंने मेरे स्टोरी में मैंने 2-3 पॉइंट लिखे थे। और ये जो बायोगैस वाला आइडिया था ना, और मैन्योर वाला, ये मुझे कहाँ से आया कि व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा इन केजे सोमैया, आई वाज सेंट टू समीरवाड़ी फ्रॉम केजे सोमैया पॉलिटेक्निक ओनली फॉर 7 days, ओके। तो वहाँ पे समीरवाड़ी में हमारा मेन एज ए सिविल इंजीनियर लीवर सेंस की ये जो बायोगैस का अगर छोटा सा बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है टैंक का, तो कैसे कर सकते हैं। तो दैट टाइम आई स्टडीड दिस बायोगैस वाला, ओके, इन माय सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा। तो ये फायदा मुझे यहाँ पे हो गया अभी एसएसपी के लिए, क्योंकि माय स्टोरी वाज यूनिक। नाउ आई विल कम टू डिस्कशन वाला पार्ट, कि जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि क्या मतलब कैसे करना है, तो टू बी ऑनेस्ट डिस्कशन में कैसा रहता है, द फर्स्ट कैंडिडेट विल बी देयर ना, कि जो पहले इनिशिएटिव लेगा उसको थोड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि अच्छा इसने इनिशिएटिव लिया बात करने के लिए, ऐसा होता है। बट इट डजंट मैटर, ओके, लेट मी टेल यू, आई वाज अमंग 10 people, आई वाज द फिफ्थ वन टू टॉक, ओके। मेरे पहले 4 कैंडिडेट ने बात कर ली थी, लाइक मेरी स्टोरी ये है ये है। तो आई लाइक वेरी नर्वस कि यार अभी तो मतलब प्लस पॉइंट पे चला गया ना, मैंने तो 6 नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब पूरा प्लस पॉइंट पे चला दिया, इन्होंने पूरा फुटेज खा लिया, ऐसा था। बट लाइक मेरी स्टोरी सुनने के बाद इट वाज लाइक कि मैंने देखा कि एंड फनी इम्पोर्टेंट रोल इन दिस, ओके, जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं तुम्हारे आजू बाजू में, तुम्हें उनसे आई कांटेक्ट नहीं करना है, ओके। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि तुम्हें स्टोरी जो तुम्हारा ग्रुप है उनको नरेट करनी है, नॉट कि पॉइंट मिलने के लिए ऐसा उसकी साइकोलॉजी की तरफ से तुम्हें देखना भी नहीं है, ओके। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस। अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो बस समझ लेना कि यू वोंट बी एबल टू स्क्रीनिंग। तो जो तुम्हारा ग्रुप है तुम्हें उनको स्टोरी नरेट करनी है, उनको समझानी है अपनी स्टोरी, और डिस्कशन उनके साथ ही करना है। जैसे आपको अर्जुन बात की तुम्हारे आजू बाजू कोई है ही नहीं, तुम बस 10 बंदे हो, और तुम्हें उन्हीं के साथ डिस्कस करना है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये वो मेरे थॉट तो ये है। और ये सब होने के बाद तुम्हें एक कॉमन स्टोरी, किसी की स्टोरी को अग्री करना है कि आई अग्री विथ दिस कैंडिडेट, इसकी स्टोरी ऐसा है। तो बट एट द एंड कोई अग्री नहीं करता, बिकॉज सबको पॉइंट्स कमाने होते, तो कोई किसी स्टोरी से अग्री नहीं करता। इसमें व्हाट आई जस्ट लाइक आई सेड ना, यू हैव टू शो योर लीडरशिप क्वालिटी। व्हाट आई सॉ कि ठीक है मुझे प्लस पॉइंट तो नहीं मिल पाया, बट मैंने ये पढ़ा था कि यू हैव टू शो योर लीडरशिप क्वालिटी। आई सॉ 2-3 कैंडिडेट्स वर देयर कि वो बात ही नहीं कर पा रहे थे, उनका नेचर ही शाई टाइप था। आई जस्ट स्टॉप एवरीवन, और देन आई सेड कि लेट्स आस्क टेस्ट नंबर 2 एंड शो what are his thoughts about this. So it shows that अच्छा I have some leadership qualities कि मैं अपने कलीग को अपने साथ लेके चल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग हिम इक्वल अपॉर्चुनिटी कि तू बता कि अपनी स्टोरी क्या है, तू क्या बताना चाहता है। लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं स्क्रीन में हो जाऊंगा या नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए, अमॉन्ग 345 24 गॉट सिलेक्टेड, स्क्रीनिंग हो गए थे। देन नाउ इट कम्स टू सेकेंड डे, जब था साइकोलॉजिकल टेस्ट था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, देन पिक्चर परसेप्शन टेस्ट था। तो आई टेल यू कि हार्डली स्टोरीज तो अमाउंट 60 आई वॉज एबल टू कंप्लीट ओनली 40 स्टोरीज, ओके। 40 to आई थिंक 45 स्टोरीज मैं कंप्लीट कर पाया था। देयर वर सम नेगेटिव पिक्चर्स ऑल्सो, ओके। तो जिनमें मुझे लगा कि इसमें नेगेटिव स्टोरी बन सकती है, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया था, बिकॉज टाइम बहुत कम रहता है। तो जस्ट पहला थॉट जो तुम्हारे माइंड में आएगा तुम्हें बस लिख देना है, ओके। यू हैव टू राइट इट, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ओके। और अमाउंट 60 मैंने 45 स्टोरीज लिख दी थी। और एंड आई टेल यू ऑनेस्टली कि
जो मैंने प्रैक्टिस की थी ना, मैंने मैक्सिमम स्टोरीज वही लिखी थी। ओके, तो ये एक थोड़ा बेनिफिट था। मेरे साथ जो थे उन्होंने देवर एबल टू कंप्लीट अराउंड 40-42, मतलब वही सेम रेंज में। बट आई रिमेम्बर मैंने 45 टू समथिंग 45 मैंने कंप्लीट की थी स्टोरी। देन नाउ इट कम्स टू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये थोड़ा टफ था, मतलब लाइक कि तुम्हें सोचना पड़ता है, ये टेक्स टाइम। तो बट तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, बस 1 मिनट का टाइम होता है हार्डली। 1 मिनट के टाइम में तुम्हें वो सिचुएशन पढ़ के तुम्हें रिएक्ट भी करना है। तो अगेन सिचुएशन रिएक्शन में आई थिंक आई वॉज एबल टू कंप्लीट ओनली 42 या 43। 17 और 18 आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट। तो साइकोलॉजिकल में हो गया। फिर एक साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चनिंग किया था, मतलब दे आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, देखते कि ये वो ऐसा होता है। देन थर्ड डे पे इट कम्स टू ग्रुप ऑब्स्टेकल टेस्ट। तो ग्रुप ऑब्स्टेकल टेस्ट में जस्ट यूट्यूब पे देख लेना एक बार, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि रेड को टच करोगे तो नेगेटिव पॉइंट ऐसे होता है। तो ग्रुप ऑब्स्टेकल टेस्ट में यू हैव टू अगेन शो योर लीडरशिप क्वालिटीज, यू हैव टू पुट योर थॉट कि अगर हम ये भट्टा, ये बल्ला और ये रस्सी का ऐसे यूज करेंगे तो हम ऐसे क्रॉस कर पाएंगे। हर्डल्स, देयर विल बी हर्डल्स विल बी देयर, यू हैव टू क्रॉस देम और तुम्हें फिनिश पॉइंट तक पहुंचना होता है। तो यू हैव टू चेक, यूट्यूब पे एक बार देख लेना कि ये वीडियोस कैसे होती है। देन एक होती है स्नेक रेस होती है, फिर जो एज अ ग्रुप तुम्हें कंप्लीट, ग्रुप में एज अ ग्रुप ऑब्स्टेकल होता है वो पूरा, और एज अ ग्रुप यू हैव टू कंप्लीट दैट। एक मतलब वो तुम्हें रस्सी रस्सी दी जाती है, वन रोप इज बी देयर कि वो पहले 10 पीपल विल बी देयर इन योर एवरी ग्रुप। ओके, तो एक फर्स्ट बंदे से लेके 10th वाले तक वो पूरी रोप एज ए स्नेक यू विल कैरी। और तुमसे वो जब हर्डल तुम क्लियर कर रहे हो तो तुम वो रेड को, रेड जहाँ पे भी रेड पेंटेड है वहां पे टच नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा फिर। एंड हियर आई टेल यू कि यहाँ पे मुझे बेनिफिट ऐसे हुआ था ना कि माई लाइक इफ यू आर फिजिकली फिट ना और तुम उतना एक्टिव हो, यू विल बी एबल टू हेल्प अदर पर्सन। तो मैंने बस यही किया था। मैंने कैसे किया था कि जितने भी मैक्सिमम बंदे थे ना मैंने उनको हेल्प की थी, मतलब जैसे चाइना वॉर वगैरह होती है उनको क्लाइंब करना होता था, आई हैव हेल्प देम अ लॉट। तो यहाँ पे एक मुझे प्लस पॉइंट मिला था कि आई हैव हेल्प ईच एंड एवरी वन। ओके, तो उसके ये कंप्लीट होने के बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टेस्ट आता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में भी आई वाज एबल टू कंप्लीट ओनली 8। ओके, 10 कंप्लीट होने के बाद यू कैन अगेन रिपीट, उससे तुम्हें प्लस पॉइंट मिलता है। बट उसका भी एक टाइम होता है, मतलब आई थिंक 60 to 90 सेकेंड्स होता है ऐसा कुछ। तो वो उतने टाइम में तुम्हें वो पूरे ऑब्स्टेकल्स क्लियर करने होते हैं। जो तुम्हारे ग्रुप ऑब्स्टेकल्स से ऑब्स्टेकल्स टेस्ट है ये समटाइम्स 4th डे पे भी चलते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी, एक मैप दिखाया जाएगा कि यहाँ से ट्रेन जा रही है और यहाँ से चोर जाने वाले हैं। सेम सिचुएशन हम हमें दी गई थी। एंड आवर स्टोरी वॉज नॉट गुड बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ने हमें बोला था कि दिस इज शिट स्टोरी एंड एवरीथिंग, बट according to us it was up to the mark, not that but it was okay, like we gave our 100% and we were satisfied by our story। तो सेम है कि तुम्हें स्टोरी बनाते वक्त तुम्हें यही दिखाना है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हें सेट करनी है। पहले तुम पीपल लाइव्स मैटर्स, तो तुम्हें मतलब कि जैसे पटरी पे उन्होंने बॉम्ब लगाया तो पहले तुम पुलिस को ये इन्फॉर्म करोगे कि वो पटरी पे बॉम्ब लगाना है, तो so that police will reach there early। और बाद में बैंक का, because money doesn't matter ना, people's life matters। then after that ये सब होने के बाद as I told you one command task was there कि like obstacle test ही होता है पर एक command task होता है। तो इसमें एक बेनिफिट मुझे ये था कि as I told you I performed very well in snake race, क्योंकि I was physically fit, तो मैंने बंदों को I was able to help them। तो कमांड टास्क में अमाउंट द 9 फ्रॉम माय ग्रुप ना, जो 9 बंदे थे उनमें से 6 कैंडिडेट्स ने मुझे बुलाया था कमांड टास्क में हेल्प करने के लिए। तो ये एक और प्लस पॉइंट था मेरे लिए। एंड लेट मी टेल यू, यू विल फाइंड ना कि जब तुम्हारे वो वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं ना तो दे विल टेल यू कि अरे तू कमांड टास्क में मुझे ही बुलाना। ओके, बट डोंट डू दैट। ओके, जस्ट सी कि तुम्हें किससे बेनिफिट हो सकता, मतलब किसके पास ज्यादा दिमाग वो लगा सकता है या ऐसा। जस्ट चूज देम वाइजली।
ये होता है कि बस एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ऐसा था कि जो साइकोलॉजिस्ट था उसने देखा कि आई वॉज कॉल्ड बाय 6 पीपल फ्रॉम माई ग्रुप, तो मेरा जो कमांड टास्क था ना वो बहुत हार्ड दिया था मुझे, बहुत हार्ड था। उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है, विद इन दैट टाइम लिमिट, तो उसको भी पता था कि ये बहुत हार्ड है। देन ऑल्सो ही गेव मी सम एक्स्ट्रा टाइम, ओके जस्ट सी इफ यू आर यू हैव दैट इन यू और नॉट, बट एनी हाउ लाइक 10 मिनट्स का रहता है। आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इन 20 मिनट्स क्योंकि उसने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया था, बट एनी हाउ आई कम्प्लीटेड इट, दैट्स व्हाट मैटर। ओके, टाइम डजंट मैटर, बट ही गेव मी लाइक ओके चलो ठीक है टाइम दिया, बट आई वॉज एबल टू डू इट, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये एक और मेरे लिए प्लस पॉइंट था। नाउ इट कम्स टू फोर्थ डे। ओके, फोर्थ डे पे इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इंटरव्यू ले रहे थे, बट मेरा इंटरव्यू तब नहीं था। आई वॉज हैविंग माई इंटरव्यू ऑन 5th डे। तो 4th डे पे ये सब कंप्लीट हो गया है, लाइक इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स वगैरह, ऑब्स्टेकल टेस्ट और ये सब कंप्लीट हो गया था। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस entire service selection board procedure, personal interview. My interview lasted for 50 to 60 minutes, okay, for an hour. In this, I'll more focus on this interview, okay, because in this interview I was asked each and everything. The interviewer started from my background, okay, I'll tell you कि my father used to do farming. तो दे आस्क्ड मी, अच्छा फार्मिंग में क्या करते हो तुम, कितनी लैंड है तुम्हारे पास, तो अच्छा तुम्हें कौन से क्रॉप्स के बारे में पता है, ये आस्क एवरीथिंग अबाउट कि अच्छा इसमें से कितना पैसा आता है, अगर मैं ये सीजन में ये लगाऊंगा तो कितना इनकम मुझे मिलेगा, ये वगैरह। यू जस्ट चेक योर नॉलेज एंड योर सिचुएशनल अवेयरनेस, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योर सराउंडिंग, whether you know that or not. He'll just check it. Okay. Then, like main thing, the way you dress, okay, it again matters a lot. It speaks a lot about you. What kind of uniform you are wearing, what kind of clothes you are wearing, it speaks a lot about you. तो इंटरव्यू में तो तुम्हें फॉर्मल्स पहन के जाना है विद टाई एंड ऑल। Then he started asking, "Acha, nice tie. Who gave you this tie?" So I said, "One of my friends gifted me." "Acha, they gifted. Why they gifted you?" So I said, कि मेरे कॉलेज में से आज तक एसएसजी के लिए किसी को नहीं बुलाया गया था, बट आई गॉट द कॉल एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, so everyone was very happy, so they gifted me. Okay, so ये शर्ट किसने गिफ्ट की है? Then I said कि one of my friend gifted this. Okay, you have a good friends? So I said yes. Acha, okay. Then do you have any girlfriend? Yes. Then even in your personal life also, okay, he'll ask you some personal questions also. You just check means how you are answering those questions, how you are tackling those questions, and if whether you are telling truth or not, he will be able to understand it. Okay, no matter what, like he will ask you very personal questions also. Okay, that time it matters what you say and how you say. Okay. Then if I talk about technical aspect of this interview, so as I told you, sir was mechanical engineer and I am a civil engineer. So sir just asked me three questions like what is yield stress, what is MS bar, ये 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, shear stress पूछा था, then सर ने मुझे ब्रिज बेयरिंग के बारे में पूछा था। ओके, दिस मच ओनली, क्योंकि I knew it कि sir won't be able to understand civil का knowledge, sir won't be having that. तो सर was a mechanical engineer, तो मैकेनिकल और सिविल में जो कॉमन सब्जेक्ट था सर ने मुझे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए थे और सिविल का बस ब्रिज बेयरिंग का क्वेश्चन पूछा था। तो हियर आई हैड वन मोर प्लस पॉइंट टेक्निकल नॉलेज में, बिकॉज सर ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे टेक्निकली आई वाज एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। Then now comes to personal life. So sir asked each and everything. Sir was digging each and everything. Like he'll ask you very personal questions also. You just have to answer it the way you want, but just don't bluff in this. You समझ जाएगा, because you have completed this 4 days, and on 5th day if you are bluffing, your entire efforts will go in vain.
कुछ फायदा नहीं होगा. इसके लिए whatever he will ask you, you just have to answer them. अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन ज्यादा ही पर्सनली है और तुम बोलते सॉरी सर दिस इज, तो देन यू नो he will dig in more on that question. So it's better to say whatever, just be you and be yourself. जो भी है वो बोलना है तुम्हें बस. ये होने के बाद then after that he'll ask you more about your family background also. Why do you, and one more common question is that why do you want to join the Navy? तो इसका आंसर तो तुम्हें पहले ही रेडी रखना है. ओके, पहले ही पहले ही रेडी रखना है कि why you want to, you have to be very transparent about this thought. Why do you want to join the Navy? Like he asked me, then I said कि सर आई एम अ सिविल इंजीनियर और बाहर को जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है नहीं, और देन और मुझे नेवी ज्वाइन करनी थी. टू बी ऑनेस्ट सिंस 10th स्टैंडर्ड आई वांटेड टू ज्वाइन द नेवी, बट दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी. आई वाज कंफ्यूज अबाउट दैट, बट या पैसा मर्चेंट नेवी में ज्यादा मिलता है, तो आई हैड दैट थॉट यस आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी. बट मैंने डिप्लोमा ले लिया तो मुझे कोई चांस नहीं था मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का वगैरह. एंड इन बिटवीन आई थिंक आई हर्ड दैट कि फॉर सिविल इंजीनियरिंग इंडियन नेवी में कोई पोस्ट नहीं थी. आई थिंक रिसेंटली सिंस 2015 और 16 दे स्टार्टेड हायरिंग सिविल इंजीनियर्स आल्सो. तो जब ये आस्क मी कि अच्छा तुम्हें नेवी ज्वाइन करनी थी 10th स्टैंडर्ड से, जो तुमने why didn't you go for this 10+2 BTech entry or NDA entry? Then I said, sir, I was not aware about this entry. And to be honest, my English, that time my English was not that good, okay? So sir pointed to that, yeah, why you said that you want to join Navy, but yeah, your English is not that good, yeah. तो मैंने, I will tell you, मैंने एक आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, सर इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, आई लर्न इट एंड मे बी वन डे आई विल बी बेटर देन यू. So it shows your confidence. Okay, ये एक this was also plus point. He started laughing on that. Okay, so ये एक था कि okay, I am accepting my flaws, but I am at the same time I am thinking that how I will improve on that. Okay, it shows you that leadership qualities. कि अच्छा ये एक और था. Then as I told you, one rapid fire question. Okay. He asked me 20 questions. I was able to answer only 7 of them. So amongst those 7 questions, then I asked him, sir, will you please repeat these 3 questions? Then again, he said that, there is a rule. So he asked me anything for me. Then I said, yes, sir. तो मैंने सर ने जब मुझे पूछा ना anything for me, तो मैंने सर को rapid fire question पूछे थे 10. And he just simply smiled at me. Okay. And he said, okay, gentlemen, it was pleasure to meet you. So, in this interview, I just want to tell you that मैंने इतना कुछ bluff नहीं किया, nothing. I just, जो था मैंने सच बोला सब. I just showed my presence of mind, okay? Like कि English के ऊपर जब सर ने point out किया था, and when sir asked me anything for me, so it shows. अच्छा, you have something unique. You're different. You're not like everyone. Something is different in you. That's why they should hire you. Because they'll ask you, why should I hire you as an officer? Because being an officer, there is, you'll have on those golden shoulders, you'll have great responsibility in future. So they'll just check it, in and out through in you, like what kind of person you are, in which situation you are behaving like this. As I say, they'll ask you very personal questions. Like personal questions like, you have sex with someone, what your girlfriend do, they will ask you each and everything. Then after this completing interview, at the end of the day announce the result. So amongst this 24, we 3 got recommended. Only 3 of us got recommended, and we were sent to medicals. After that, I completed my medicals, and after completing my exam in of 8th term, last year of engineering, around 6th of June, I completed my exam, and in 7th of July 2018,
I joined Indian Naval Academy for my training purpose. So thank you so much, and I'm open for questions. You can go ahead if anyone wants to ask any question. Yes, students, you can ask your doubts or if you want to ask something. Or you can take my number from sir. If you want to text me, you can text me because my vacation is still here. I am here till 25th of December. So I am available till 25th. If you want to call me, you can give me a call. If I have time, I'll be able to entertain you. And it will be an honor to help you. Because when I was preparing, no one was there to help me. Now, right now, I am available. So you can call me or text me anytime. I'll help you. I'm having one doubt. Yeah, Yeah, please go go ahead. ahead, go ahead. I also wanted to join the army, but I wanted to join the Indian Air Force. So, is there any post for after civil engineering for it? For Indian Army. No, no, Air Force. Indian Air Force, yes. You can go for technical entry there, like technical ground duties. So you have specs, No, no. you don't have specs, na. So if you want to go for flying, na, so they will check you. First of all, you have to undergo for medical. Or AFCAT में like ground, you will be easily get ground duties, okay. But to be honest, if I'll tell you now, okay, if you want to use your knowledge now, you should go for either Indian Navy or Indian Army. Because Air Force में civil का कुछ है नहीं, okay. Okay. No, ज़्यादा नहीं actually, है I मतलब. wanted to be a pilot in that. So, हाँ, is so there? if you want to be a pilot, you can go, or else maybe Indian Navy में भी SSC pilot entry आती है, okay. You Okay. can apply for that also, but you have to study a lot in pilot entries. Now you have to study a lot. Mm, uh, Okay, I thank you. think if you want to join as a pilot, uh, if if I'm not wrong, you have to go for 10 plus 2 ka scheme. Diploma students, I am doubtful that whether with the No, sir, diploma. no. Pardon, sir, but it's not necessary that 10 plus 2 are entry because as I told you, I am a SSC officer, Short Service Commission. No, that So, SSC is the SSC is different, but SSC if is there, you yes. want to, SSC is totally different. But if you want to go for this pilot ka things na, for that they Yes. require 12 science. Sir, So but that permanent commission is there. For if you want to opt for a permanent commission, then 10 plus 2 entries, I will suggest. so because kyunki one of my one of the student he was trying and he consulted and Yes. all everything. So they asked for this. Ki if you have done 12th standard with the science, then only you can go ahead. So this diploma student have this problem, but you can get it Yes. clear from any other agencies. Let me tell you frankly, sir. Sorry, but actually there is one discussion on this only. So it's like diploma students can apply, but अगर ऐसा लिखा हुआ, I'll tell you, same thing happened with me when I was admitted in hospital. I was asked by board president कि your diploma entry and how you have joined this service. When I have explained, sir, I called headquarters and I have told that it doesn't matter that whether I have done 10 plus 2 or whether I have done. What your criteria is that like Bachelor of Engineering. So they considered my application and then this is how I got a call for SSC. Okay. So, Because means after diploma, I will be not applicable. After BE, Hey, I will Varun, applicable. Varun, it is not like that after diploma. After diploma, definitely not. Right. Okay. After diploma, yes, if I'm not no, wrong, after after diploma there diploma, is no no, scope. After no, diploma sir. there is no scope. But after BE, as BE. Shubham is saying, there is a scope. But according to me, it is not. But you can get it cleared from
we have a base Yes, here sir. in Cotton Green. Yes, Mumbai Cotton Green, you have a Air Force base. sir. Even on the Yes, Air sir. Force ka website also, you can get the Okay. clear Yes, picture about it. There are some entries in Air yes, Force for civil engineer, very few, not more, yes. not much, very few. But for flying, I'm doubtful. So you can just clear it from the Air Force ka website, or I think Shubham may be able to help you out later on. Yes, sure, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. You're most welcome. Yes, anybody else? So one more point I would like to add for women officer. Okay, for women officers in Indian Navy, you have education entry, air traffic controller entry, observer entry, pilot entry, and education entry. So among these two entries, now logistic entry and education entry, it's very beneficial for women officers. Okay, same like 25 is the age criteria, and ground duties are there. Both of them are ground duties. Education branch में, you know, same like teachers, but you will be teaching naval subjects. So base life is there, and those women, who wants to join, they can surely, just go ahead for this, because let me tell you guys, current scenario in civil engineering is not that good. Okay, I have my friends who are still struggling with their career, but after joining defense, I'll tell you frankly, life will get more easy for you. You will get a good amount of package also in this period, because अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग करके बाहर जॉब करता तो मुझे इतना पैकेज नहीं मिल पाता. So it's better if you will go for some out of box na. You should definitely try, at least try. Okay, that's my advice for you all. And you have time. Okay, you can start preparing from now itself. जितना जल्दी you will start preparing, it will be helpful for you in your future. Okay, anybody else is there for any questions? Okay, I think see this uniform services are very lucrative, and you don't only consider from the money point of view, but it gives you a entire different way of lifestyle. And as Shubham said, outside market for civil engineers are not that good nowadays. So if you're thinking any uniform services as a future option, it will give you lot many things. And for girls, now there are special entries are there, and a more number of girls are getting recruited in armed forces, for combat as well as non-combat services. This is a wonderful opportunity, and you get two different lives to live. So if you are getting selected through, say, SSB or Short Service Commission, or as a permanent officer, you work there for a certain period of time, say 20 years, and after that you can, work outside in civil also. After completing your service, you have a good opportunity to work outside. So you will be able to enjoy both the lives, and definitely it is a different experience altogether. So I think you all must, those who are having inclination and little bit physically fit, and they are willing to join, you can think about it. You have 4 5 years ka time with you for the preparation, and definitely go ahead for those things. Thank you, Shubham, for accepting this invitation for the guest lecture on a very short period of time. The only you know my interest in this was, see, these people are at a point where they are clueless. I mean, they are in the final year of diploma. After that, they will join blindly. They will 99% of them will join degree. Anyhow, they will complete their degree, and then they will start looking here and there, left and right. What to do now? What is next? So rather than reaching up to that mark blindly, you need to figure it out what you have to do.
after completing your degree, what you want to do. That is more important than just completing the degree. So that accordingly you can plan your path. You can, adapt yourself with different types of skills, which is very, very important. Uh, but in our education system or in present scenario, this is lacking. So what happens? Everybody, running a race. After completing the race, everyone starts looking here and there for what we were running the race, clueless. So that should not happen with you. That was the aim for this guest lecture. And I thank Subham for joining this on a very short period of time. Even he had not time to prepare, otherwise he definitely would have prepared slides and all. But he was, on some uh, family commitment and all. But thanks again, Shubham. Thank you very much for joining this short period of time, and I'm looking forward that your support and guidance for our students will be continuous. So I have his number. Anybody having any doubt, difficulties, you can take his number from me and you can communicate with Shubham directly. So thank you all for attending the lecture. Thank you so Thank much, you very sir. much. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. I know I'm not a professional speaker or anything. I just tried my best. If you anybody wants to ask me anything, I'll just feel free to ask. Okay, I am available. And let me tell you one thing. I was inspired by Ashok sir only because sir was in BSS. So just thank you, sir, for everything. Oh, I think we had a visit of this Yes, sir. In Ahmednagar Army Yes, sir. Center, I right? remember. Yeah, Yes, yeah, sir. yeah. Yes, Your batch was very lucky that we got an opportunity to visit sir. there on a request. That was because Yes. of you only, sir. I still remember. Yeah, thank you, dear. Thank you. Thank you. Yes, thank you so much, everyone, for listening me. I had a great time with you. Thank you. Thank And you all all. the very Thank you. best. And I wish you a very good luck to everyone. Okay, Shwan. Thank you, dear. Thank you, everyone. Yes. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear. Yes, all of you can Thank you, just sir. just fill the attendance. I have posted the link. Mark your attendance. Okay, dear. Thank you.